CBSE Mathematics Class 12, Exercise 3.4, Question number 11. I see the question A, appendix, matrices दिया हुआ है, मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 - 6 1 - 2. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, देखिए लेफ्ट टू डाउन इस 2 into 2, तो माइनस का 4 हो जाएगा. इधर से जाएंगे तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 into -6. लेफ्ट टू अप जाते समय हमारे को 1 माइनस अपने तरफ से एडिशन करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है. सो इसी ईयर -1 into -6, so -4 - -6, it will be -4 plus 6, that will be equal to 2, and 2 is not equal to 0. This indicates that inverse A exists. So while we are proceeding with row wise, means operation is being started from row wise, so that will be equal to A equal to I into A, means identity matrix A. So A की जगह पर हमने लिख दिया मैट्रिक्स that is 2 - 6 1 - 2. अब जब भी हम अगर रो वाइज चलते हैं 2 into 2 में, देखिए यू शेप का हमारा एम होता है इसको 1 करना, फिर इसको 0 करना, फिर इसको 1 करना और फिर इसको 0 करना. Keeping in mind, you have to keep in your mind that we have to make this, means 1 row column 1, means A11, उसको हम 1 करेंगे, फिर उसके बाद इसको 0, फिर उसके बाद इसको 1, फिर ऊपर वाले को 0. देखिए यहाँ पर पहले तो हमने लिख दिया इसको एज इट इज. अब देखिए रो का क्या किया हूँ, रो 1 को 2 से डिवाइड किया हूँ. क्यों? क्योंकि हम 2 की जगह पर 1 चाहते हैं. तो रो 1 को डिवाइडेड बाई 2. जो ऑपरेशन आप इधर करते हैं, वी हैव टू डू द सेम ऑपरेशन दिस साइड आल्सो, राइट हैंड साइड में भी. सो R1 विल बी इक्वल टू R1 बाई 2. नाउ यू सी हियर इट हैज बिकम 1, and 6 - 6 will be divided by 2, then it will become -3. Here it will be 1 by 2, and 0 divided by 2 will be 0 only, and 0 1 as it is, A as it is. Now the next operation, that is row 2, will go under operation, that is row 2 minus row 1, means corresponding elements को हमें subtract करना है. देखिए 1 - 1, that is 0 here, and -2 - 3, so it will become 1 here. So now you see the 1 0 has come, 1 is already there. We have to change only -3. Here also you see -1 by 2 1 0. So next operation will be on row 1, that is row plus thrice of row 2. थ्राइस ऑफ रो 2 का मतलब इसको हम रो 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो 1 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 है और +3 0 हो जाएगा. देखिए अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला है, 1 0 1 0, and simultaneously we have carried out the same operation on the right hand side. So we got -1 3 -1 by 2 1 into A. So the inverse of A will be equal to -1 3 -1 by 2 1. This will be the required answer. The same answer can be found out by
this method. This is a joint method which we will study later on, but it is very simple to understand. You see, left to down क्रॉस में चलिए. इसका कॉल you have to change the places of the element. Means -2 will go to the 2 and 2 will come to the -2. You see, here you see -2, 2. And now we have to change the sign up, left to up. So it will become -1 and this will become 6. So -1, 6. Whole divided by 2. 2, why? What is 2? 2 is the determinant value. So we have divided it by 2. So once you divide it, you will get here -1 by 2, 3 and 1. You see, just compare the answer. Both answers are the same. It is an elementary transformation method, which I have done it by the rows operation. Now come to the question number 12. You see, the matrix A, that is 6, -3, -2, 1. So find out the first of all determinant value, that is A. So left to down means 6 into 1, 6. -2 into -3, that is +6. माइनस हो जाएगा अपने तरफ से. So 6 minus 6, that is 0. Now determinant value is 0. So inverse of A does not exist. क्यों नहीं एग्जिस्ट होता है? क्योंकि देखिए, आप डिटर्मिनेंट अगर 0 से डिवाइड करोगे, दैट इज नॉट डिफाइंड. ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम. अब ये 2 0 हो गया तो इट इज नॉट डिफाइंड. हेंस डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स डज नॉट exist. Now come to the question number 13. A, the matrix A, that is 2, -3, -1, 2. So first of all, you find out the determinant value. You see the 2 into 2, left to down, 2 into 2, 4, and left to up. While we are doing left to up, at that time you have to multiply minus from your side also. So it will become -3. So 4 minus 3, that is equal to 1, and 1 is not equal to 0. This implies that the inverse of A exists. Now row-wise operation. While we are doing row-wise operation, we have to proceed like U. अंग्रेजी का अल्फाबेट है U. You see, you have to start from 2, 1, -2, -1, 2, 3. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को चेंज करना होगा. तो चलिए हम देखते हैं. देयरफॉर A इज इक्वल टू I इंटू A. A की जगह पर हमने क्या लिख दिया? मैट्रिक्स 2, -3, -1, 2. और इधर I की जगह पर लिखा मैंने 1, 0, 0, 1 इंटू A. पहला ऑपरेशन है रो 1 अंडरगोज ऑपरेशन, दैट इज रो 1 प्लस रो 2. अब रो 1 प्लस रो 2 करेंगे तो 2 minus 1, that is 1 here. That is our requirement 1, we have got it. Now here it is -1 और यहाँ पर करेंगे आप -3 plus 2, then you will get -1 here. But side by side, you see the row 1, while you are adding 0 to 1, again it will remain 1, or 0 plus 1, 0, here 0 है, 0 में 1 plus करोगे तो 1 आ जाएगा. Now start from the row 2 undergoes operation, that is row 2 plus row 1. It will be 1, 0, 1, -1. Here we have to carry out the same operation simultaneously, same operation on the right hand side also. That is 1, 1, 0, 1. देखिए R2 plus R1. R2 में क्या है? ये 0 था, इसको 1 को प्लस किया हमने तो 1 मिल गया.
इस वन में 1 प्लस किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस किया तो 2 मिल गया। नाउ द थर्ड ऑपरेशन दैट इज रो 1। क्यों हमने थर्ड ऑपरेशन करना है? क्योंकि हमारे को इसको 0 बनाना है। देखिए यू वाला पोर्शन को हमने ऐसे लेकर के ऐसे यहाँ तक पहुँच गए, इसको पूरा करना है। लेट अस डू इट। तो इन ऑर्डर टू मेक इट 0, -1 को 0 बनाने के लिए रो 1 अंडरगोज ऑपरेशन दैट इज रो 1 प्लस रो 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 + 1 दैट इज 1। अब यहाँ पर -1 + 1 दैट इज 0, 1। हियर यू कम 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगा। So on the right hand side it is 2 3 1 2. Therefore inverse A will be equal to 2 3 1 2. अब इसी को शॉर्टकट मेथड से मैं बता देता हूँ। यहीं पर A इनवर्स विल बी इक्वल टू, पहले तो देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 1, ये नीचे रखा है एज ए डिनोमिनेटर। और एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है 2 और 2 का इंटरचेंज कर देते हैं। अब नेचुरली यहाँ पर 2 2 है तो चेंज करेंगे तभी भी 2 2 रहेगा। और इसका दोनों का साइन लेफ्ट टू अप, ये -1 है, यहाँ पर -3 है, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस हो जाएगा। 1 3 होल डिवाइडेड बाई 1। नाउ कंपेयर दिस आंसर, बोथ आर द सेम। So it is an elementary process, it is a shortcut method you can say. Now come to the question number 14. Question number 14, A, that is 2 1 4 2. Determinant value will be equal to 4 - 4 0. This shows that the inverse of A does not exist. So question number 14 is completed here. Now come to the question number 15. It is 3 by 3 order, square matrix 3 by 3 order. अब इसको अगर हम रो वाइज सॉल्व करते हैं तो हमारे को वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, इसी हियर 1 1 2 1 3 1। पहले हम 2 1 को 1 करना है, और नहीं 1 1 को 2 1 करना है, 2 1 को 0 करना है, 3 1 को भी 0 करना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे 2 2 पर, इसको 1 करना है। फिर आएंगे हम 3 2 मीन्स थर्ड रो कॉलम 2 पर, इसको हमें 0 करना होगा। फिर उसके बाद वी विल प्रोसीड टू 3 3, इसको 1 करना होगा। फिर इसके बाद 2 3, इसको 0 करना होगा। फिर 1 3, इसको 0 करना होगा। फिर 1 2, इसको 0 करना होगा। कीपिंग इन माइंड दिस ऑपरेशन, we have to start the row wise operation here. So the row wise operation के लिए मैंने स्केलेटन तैयार किया है कि हमारा एम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हर एक ऑपरेशन में कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए पहले तो हमने लिख दिया रो वाइज ऑपरेशन के लिए क्या है, A = आइडेंटिटी इंटू ए की जगह पर हमने पूरा मैट्रिक्स लिखा है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। This side, right hand side, it is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A। और इसका जो हमने निकाला था डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट इज 2 × 4 + 6। कैसे है, ये 2 है, और यहाँ पर देखिए इस 2
जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 लाइज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस वन, विल टेक द रिमेनिंग। तो 2 2 जा 4 और माइनस इसके साथ हम लगाएंगे तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 इंटू 4 प्लस 6। अब नेक्स्ट के लिए -3 है। अब ये -3 जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो मीन्स नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 ऑड नंबर है, तो -1 रेज़्ड टू पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू -1। तो -1 अपने तरफ से करना पड़ेगा, इसीलिए हमने देखो यहाँ पर किया है माइनस इंटू -3। उसके बाद ये -3 जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तब देखिए क्या क्या बचा है, इधर 2 3 3 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू डाउन, वाइल यू आर मल्टीप्लाइंग लेफ्ट टू डाउन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 2 2 जा 4, देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, 2 2 जा 4। और जब लेफ्ट टू अप जाते हैं माइनस अपनी तरफ से लगाइए, 3 3 जा 9, माइनस का 9। अब आ जाइए इसके लिए, अब ये एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं को फैक्टर निकालना। आप डिटर्मिनेंट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। 3 लिया हमने ये। अब 3 क्यों नहीं पॉजिटिव क्यों हो गया, देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3, थर्ड कॉलम का मतलब 3 और फर्स्ट रो का मतलब 1, तो 1 + 3 4 हो गया, तो -1 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस हो जाएगा। तो 3, अगर ये -3 होता तो हम -3 जरूर लिखते, लेकिन -3 नहीं है, और वहाँ पर इसका जो को फैक्टर होगा उसके साथ भी पॉजिटिव साइन रहेगा। अब चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा क्या 2 2 3 2, 3 -2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 इंटू 2 -6, क्योंकि एक माइनस हम लेफ्ट टू अप में अपने तरफ से लगाएंगे, तो -4 -6। सॉल्व किया इसको, 20 -15 -30 that will be equal to -25. -25 is not equal to 0. Therefore, inverse exists. While we are sure that inverse exists, we just start A is equal to I into A. Write down the matrix A here and identity matrix here and A. Now the row 1 undergoes operation. क्यों, इसमें हमें देखो ये ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम गए सेंटर में, फिर वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। ये हमारे को दिमाग में रखना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से 1 0 0, फिर 1 पर जाएंगे, फिर 0 पर आएंगे, फिर 1, फिर 0 0 0। देखिए पहले हमने क्या, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 माइनस रो 3, तो रो 1 क्या है यहाँ पर 2 -3, तो हम इसमें क्या करेंगे, रो 1 में रो 2 को प्लस करेंगे, प्लस कीजिए, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया, 4 में से 3 माइनस कीजिए, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 -3, तो -1 आ गया, -1 और माइनस का 2, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का -2 है यहाँ पर -1 है, तो ये -2 जो है ये प्लस हो जाएगा, तो 1 हो गया। Here also you see 3 + 3 6,
और माइनस R3 है, दैट इज -2 करेंगे तो 6 - 2 दैट इज 4. सो वी गॉट 114. अभी देखिए रो 2 पर कोई ऑपरेशन नहीं, रो 3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है. जब नहीं है तो हम एज इट इज लिख देंगे 2 2 3. देखिए 2 2 3 3 - 2 2. अब इस साइड में आ जाइए, सेम ऑपरेशन करना है. रो 1 प्लस रो 2. अब 1 प्लस 0 -0 करेंगे तो तभी भी 1 ही रहेगा. अब ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो 1 ही हो गया. यहाँ पर क्या था, 0 था, तो 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा. और -0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 ही रहेगा. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है, पहले तो 0 था, 0 में हमने 0 प्लस किया तो 0 ही रहा. फिर -1 किया तो -1 हो गया इंटू ए. अब नेक्स्ट है रो 2 पर ऑपरेशन. मीन्स रो 2 अंडरगोज ऑपरेशन, दैट इज रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1. अब देखिए रो 2 में क्या है, हमारे को एम था, हमारा एम क्या था, इस 2 को 0 करना. तो कैसे होगा, रो 2 माइनस रो 1. 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस करो तो 0 मिल जाएगा. रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से माइनस करो, ये 0 मिल जाएगा. रो 1 में मीन्स 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 से माइनस करो तो क्या मिलेगा हमारे को, ये 4 है. यहाँ 4 इंटू 2. देखिए रो 2 माइनस रो 1 तो 4 टू जा 8. 8 माइनस क्या है, 3 माइनस 8 दैट इज -5. So in this way we have completed the row 2 operation. Row 3 as it is, देखिए 3 - 2 2, 3 - 2 2 as it is. और 1 का ऐसा ही रहेगा 114 114. जिस रो का ऑपरेशन हो रहा है उसी में चेंजेस होगा. अब यहाँ पर आ जाइए, simultaneously we have to do the same operation on the right hand side also. अब देखिए यहाँ पर क्या है, रो 2 में -2 रो 1 करना है तो यू विल गेट हियर -2 -1 2. अभी देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, रो 3. हमने यहाँ पर देखिए 1 0 हो गया. अब 3 को 0 करना हमारे को, तो क्या करेंगे, रो 3 में रो 3 माइनस थ्राइस रो 1. रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए और रो 3 से माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट 0 हियर. अब देखिए यहाँ पर क्या है, -2 और 3 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो -3 - 2 दैट विल -5. 2 ये है और माइनस का देखिए 3 है, 3 4 जा 12 12 और 2 माइनस 12 दैट इज -10. तो रो 3 का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ. इधर सेम साइड हियर 0 है यहाँ पर, और 0 में क्या करना है, -1 में -3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट -3. सो -3 कर दिया. 0 अगेन -3 कर दिया. अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -3 आएगा. और ये माइनस है, ये माइनस है तो -3 आ गया. -3 और हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है, देन इट विल बिकम प्लस. सो इट विल बी 4.
नाउ कम टू द रो टू ऑपरेशन, रो टू प्लस रो थ्री, रो टू प्लस रो थ्री। क्यों रो टू में जाना हमारे को यहाँ पर 1 लाना है, 0 जहाँ दिखाई दे रहा है। तो कैसे होगा, रो टू प्लस रो थ्री, रो थ्री क्या है, -5 है। तो हमने रो टू प्लस रो थ्री बाई -5, रो थ्री में -5 का से डिवाइड कीजिए और उसको रख दीजिए। देखिए ये हो गया 1। अब यहाँ पर जो आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे रो थ्री में, रो थ्री में -5 से डिवाइड करेंगे रो थ्री को, तो ये क्या हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई -5। सो -10 डिवाइडेड बाई -5 दैट विल बी इक्वल टू 2, और 2 प्लस का हो जाएगा, अब -5 प्लस 2 दैट इज -3। So in this will get -3. So after operation the row 2, देखिए अब 0 1 -3। अब देखिए यहाँ से ऐसे आया हमने, ये इस तरह से गया। ये पार्ट W का है, थोड़ा सा हिस्सा कैपिटल W का जो होता है ना ये, और W से फिर थोड़ा सा सीधे आ जाओ ये नीचे। अब इसको -5 को हमें क्या करना है, 0 करना है। सेम ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। So while we will conduct it, we will get, देखिए 1 वाला फर्स्ट रो का वही रहेगा हमारे को, हमने रो और सेकंड थर्ड रो भी वही रहेगा, केवल रो 2 में ऑपरेशन हुआ है। क्या रो 2 में ऑपरेशन हुआ, रो 2 प्लस रो 3 बाई -5। तो हम -5 से डिवाइड करके रो 3 में -5 का डिवाइड किया, मीन्स -3 बाई -5 से सॉल्व किया तो इट यू विल गेट -7/5। सिमिलरली हियर -2/5, 6/5 into A. So we have reached here now. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे को ये -5 है, इसको 0 करना है। हमने क्या किया, रो 3 प्लस 5 रो 2, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए रो 2 को, यहाँ पर देखिए 1 में, और इसको प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने ये ऑपरेशन किया, रो 2 प्लस 5 और 2, देन वी विल गेट हियर 0। नाउ इस साइड में देखिए 1 0 0 1 0 हो गया। अब वी विल प्रोसीड टू दिस, simultaneously we will have to carry out this one also। तो -25 को हमारे को क्या करना है, 1 बनाना है। वो कैसे हो जाएगा, रो 3 डिवाइडेड बाई -25, रो 3 को -25 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये 0 0 है और यहाँ पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, -3 4 एज इट इज, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या चेंजेज होगा, केवल रो 3 में चेंजेज होगा, रो 1 और रो 2 में एज इट इज 1 1 -1 -7/5 -2/5 6/5 एज इट इज। अब देखिए रो 3 बाई -25, तो यहाँ पर -10 था, -10 डिवाइडेड बाई -25 दैट विल बी इक्वल टू माइनस कैंसिल 2/5, -5 डिवाइडेड बाई 25 -25, so minus cancel 1/5, 10 divided by -25 we will get here -2/5, -2/5. This way we will carry it out. Now a little bit lengthy is this. Row 2 undergoes the operation the row 2 plus thrice row 3. अब पीछे वाले क्वेश्चन से हमने वो लिया है, देखिए आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन विल गेट हियर 1 1 4 0 1, क्योंकि हमारे को रो 2 में चेंजेस है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए
0 1 0 0 0 1 this way. Here also we will get 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 by 5 1 by 5 0 2 by 5 1 by 5 minus 2 by 5 0. Now come to the next operation, that is row 1 undergoes operation minus 4 row 3 minus 4 रो 3 मीन्स इसको 0 बनाना है हमारे को 4 को. तो हमने सोचा क्या, रो 3 में 1 है यहाँ पर, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया यहाँ पर. देखिए, सो विल गेट हियर 0, हियर इट विल बी 1 1, दिस साइड ऑल्सो रो 1 में 4 रो 3 मीन्स इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दीजिए. देखिए माइनस का माइनस 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 का माइनस 4 8 बाई 5 माइनस 8 बाई 5 और 1 से करेंगे तो माइनस 3 बाई 5 आ जाएगा. सिमिलरली हियर विल गेट 1 बाई 5 एंड 3 बाई 5. Rest of the elements will remain as it is. There will be no changes. Now come to the last operation. क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए 0 0, एक ये रह गया. देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना हमारे को. अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का नंबर जो है उसको 0 बनाना है. तो हम क्या करेंगे, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2. अब कीजिए वहाँ पर रो 1 माइनस रो 2 का जब यहाँ से करेंगे आप तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. यहाँ पर रो का जो R1 है, R1 में हम रो 2 का माइनस करेंगे. तो देखिए माइनस 3 बाई 5 था, माइनस 1 बाई 5 था, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस का 3 बाई 5 है. उसको सॉल्व किया हमने तो माइनस 2 बाई 5. यहाँ पर आइए, ये 1 बाई 5 है और इससे ऊपर जस्ट ऊपर क्या है 1 बाई 5. तो जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 को माइनस करेंगे इसमें से तो वही जाएगा 3 बाई 5. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. नाउ द इनवर्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. सो दैट विल बी माइनस 2 बाई 5 0 3 बाई 5 1 बाई 5 1 बाई 5 0 2 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15. The shortcut method you see here. हमने क्या किया पहले देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 into 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स. इसके लिए जॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को मैंने सर्किल किया है, मीन्स दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट. आई होप दैट 2 इज विजिबल टू यू. आई हैव सर्किल बाई पेंसिल से सर्किल कर रखा है. अब 2 लिखा यहाँ पर, 2 के नीचे वाला एलिमेंट माइनस 2 लिखा और माइनस 2 के बाद फिर वापस गया. देखिए माइनस 3 लिखा, माइनस 2 माइनस 3, फिर वापस आया यहाँ पर. मीन्स सेंटर से शुरू करना है. सेकेंड रो का जो सेंटर है यहाँ से शुरू किया, नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, ऊपर से फिर वापस उसी जगह पर आ गया. देख लीजिए 2 माइनस 2 माइनस 3 फिर 2. अभी आइए सेकेंड कॉलम के बीच वाला 3 रख दिया. अब उसके बाद हम नीचे चलेंगे. पहले 3 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद वापस
3 पर गया, फिर वापस 3 पर आया। अब ये हो गया सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम पर आइए, क्योंकि पहले हमने स्टार्ट किया था सेकंड कॉलम से। अब फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, बीच वाला नंबर लिखेंगे। पहले 2 लिख दिया 2, फिर नीचे जाइए 3 लिखिए। 3 लिखने के बाद वापस ऊपर जाइए, फिर 2 लिखिए। 2 लिखने के बाद फिर उसी जगह पर आ जाइए जहाँ से स्टार्ट किए थे, 2 लिख दिए। नाउ अगेन वी हैव टू कम बैक इन द सेकेंड कॉलम, और उसके एलिमेंट इसी तरह से होंगे। देखिए 2 -2 -3 2। अब इस कॉलम से और इस कॉलम को कंपेयर कर सकते हैं, सेम है। अब इसका हम वही लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू अप, लेफ्ट टू डाउन सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और लेफ्ट टू अप जाते हैं तो क्या करेंगे, माइनस अपने तरफ से 1 लगाएंगे। और जब हम कॉलम वाइज जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, रो वाइज। देखिए 2 2 जा 4, और ये माइनस है तो माइनस 1 अपने तरफ से लगाएंगे, तो 2 3 जा 6 प्लस का, तो 4 + 6 4 + 6 10। अब फिर आइए -2 × 3, -2 × 3 -6। अब -3 × 2 तो प्लस का 6, और ये 0 हो जाएगा, 0 लग दिया। देखिए कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो वाइज लिख रहे हैं। प्रोसीड कॉलम वाइज, राइट रो वाइज। अब देखिए 3 × -3 कितना, माइनस का 9, और यहाँ पर 2 3 जा 6, माइनस का 6, सो माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, तो 9 - 4 दैट इज 5। 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 दैट इज -5। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों इक्वल है, माइनस साइन हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। लास्ट देखिए इधर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो गया 0, हो गया कंप्लीट। नाउ फॉर द थर्ड रो के लिए क्या करेंगे हम, 2 - 2 दैट इज माइनस का 4, और 3 × 2 माइनस का 6, सो वी विल गेट -10। फिर 3 का -3 में मल्टीप्लाई किया, 3 × -3 दैट इज -9, 2 × -2 दैट इज -4, और एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो +4 और माइनस का 9, विल गेट -5। 2 2 जा 4, और यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे, 2 3 जा 6, तो 4 + 6 दैट इज 10। इन दिस वे वी विल कंप्लीट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए है। हम फार्मूला क्या लागू किए हैं, इनवर्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, -25। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, -25 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, -25 से। जैसे ही डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट -2/5 0, 3/5, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5, -2/5. Same answer you have got here also. The above method is the elementary transformation method, which I have done it by the row operation. Here I have done the inverse of A with the help of adjoint. So far adjoint method has been not taught to you, that will be discussed in the determinant chapter, next chapter. But little bit I have
interested to give you knowledge about this and on this point, क्योंकि मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, इधर भी है. So that's all.